if you look into this departure control systems, from here the chapter actually starts controlling. And when we talk about this one, this can come as an application based or a case study. और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि what is the concept talked about here. A departure control system automates process in airline airport management operation, which include managing the information required for airport check-in, printing, broad pass, baggage acceptance, boarding load control. और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, 98% of DCS manage e-ticket using interface from a number of device. जैसे आप जाते हो तो आपके पास कियोस्क भी है, या फिर आपको बोर्ड इन जो है यू कैन ऑल्सो बोर्ड इन फ्रॉम योर होम, अपने जाते जाते भी यू कैन इवन चेक इन, मोबाइल बोर्डिंग पास, बैगेज हैंडलिंग, एंड दे आर इवन एबल टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर अपडेटेड रिजर्वेशन फ्रॉम एन एयरलाइन कंप्यूटर. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लास्ट मिनट बुकिंग्स होती है and passenger name record, that is PNR, and they use to update reservations, typically checked in, boarded, flown, other status. और ये सारा क्या है, they may also face with immigration control for visa, passenger no fly. तो this means इससे हमें पता लगता है कि if we are following up a process, अगर हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं तो देन वी कैन ट्रैक एनी काइंड ऑफ डिविएशन दैट हैज टेकन प्लेस. फॉर एग्जांपल, उनको कैसे पता लग जाता कि इस पैसेंजर ने जो है बोर्ड नहीं किया है. इफ यू गो टू द इन द एयरपोर्ट, यू माइट बी हियरिंग कि पैसेंजर ये, उसका नाम क्या, पैसेंजर नेम AB हैज नॉट बोर्डेड. उन्हें कैसे पता होता है? Because they are having the follow-up measures. So controlling is a function which helps to seek the planned results from the subordinates. A manager needs to exercise effective control over the activities of subordinates. यानी कि ensuring that the activities are in an organization are performed as per plans. It ensures that the resources are used effectively and efficiently. So that is why ये हमारा पहला है, that is feature. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है features. पहले हमने पढ़ा था controlling का definition, now we are reading the feature. First is, it's a goal-oriented process. Second is, it is a pervasive function. Means it is a primary function of all the department, all the levels, top, middle, lower, to control the activities in their area. Moreover, it is also important in educational institution, military, hospital, club. आप कहीं पर भी हो, आपको business organization में, any organization, unless and until you don't have the control on the activities. घर में एक marriage है, लेकिन अगर आपने control नहीं किया, control can be for anything. It's an expense पे control करना, activities का predetermined target time से पूरा करना, everything is important. It should not be, ये देखिए, it is a continuous function. ये पेपर में आता है. Controlling should not be misunderstood as the last function of management. Why? Because it brings back to the planning function. यानी आप ये सोचो कि ये वाला काम हो गया तो अगला काम शुरू होगा, नेक्स्ट प्लानिंग होगी हमारी, एक खत्म हुआ तो दूसरा होगा. The controlling function finds out how far it helps in the actual performance.
It analyzes the deviation. The process helps in formulation of future plan. That is why it is called as continuous. एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा, यानी कि गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस. ये सारे इसके फीचर्स, राइट? ये आपका फीचर था. व्हाई डू वी नीड कंट्रोल? इज एन indispensable function of management. Without control, the best of plans can go awry. Awry मतलब बेकार. Why? It's a goal oriented, so it will help you in achieving the predetermined goals of the company. और कोई भी डिविएशन होगा तो वो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप चेक कर रहे हो, तो यू कैन कीप इट ऑन द राइट ट्रैक. उस दिन आपको मैंने वो आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ एप्पल. If the control is there in the system, if it is there, then what will happen is you will be able to find out the deviation there itself. नहीं तो एक पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका पूरा फॉल्टी हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्स. रिसोर्स में ह्यूमन भी एंड मनी भी. A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate and objective. It keeps a careful check on the changes that are taking place in the organization environment and revise the standards in such changes. जैसे कि हम लोगों ने, मैंने उस दिन आपको लास्ट में बताया था कि एक्सटर्नल पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है और हमें पता है तो हम उनमें जो चेंजेस हैं वो टाइम रहते कर सकते हैं. टू सम एक्सटेंट वी कैन रिड्यूस, मिनिमाइज. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस आर मनी, ह्यूमन, टाइम. Each activity is performed in accordance with the predetermined standards and norms, and we need to. लेबर ने सारा काम किया, उसको उठा के फेंक दिया, what will be the fun? स्पेसिफिकेशंस चेक होंगी तो साथ साथ में आपका जो है यू विल अंडरस्टैंड वेयर द लैक इज देयर. अगर मान लो आपने एक लेदर मंगवाया हुआ है, उस दिन हम लोगों ने बैग का एग्जांपल लिया, तो आई एम को रिलेटिंग द सेम थिंग. आपने लेदर मंगवाया है, बट आपको नहीं पता कि आपकी जो मशीनरी है उस लेदर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है. और अगर आपने उस स्पेसिफिकेशन वहीं पर इफ यू हैव कंट्रोल, तो आप इमीडिएटली ईदर यू कैन चेंज द लेदर और यू कैन चेंज द मशीन. It improves the employees moral. Why? Because हमें पहले से ही पता what are the standards, and moreover the standards here is not about the standard here is not about the work we are doing. The standard is about the employee. अब जैसे कि हम हैं, हमें कैसे, हम लोगों ने स्टाफिंग में पढ़ा that we are appraised. We are appraised. बट ऑन किस स्टैंडर्ड पे अप्रेज करते हैं? भाई हमें कोई टारगेट दिया होगा, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे. एंड इफ वी नो कि यही मेरा टारगेट है, मुझे इसको इस तरीके से खत्म करना है, तो डेफिनेटली आई विल बी मोटिवेटेड टू डू इट बेटर इन अ बेटर मैनर. एंड ऑफ कोर्स अ गुड कंट्रोल सिस्टम, हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट इज ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज ऑफ वर्क एंड ऑपरेशंस. सो बिहेवियर, डिसऑनेस्टी, इनको हम चेक कर सकते हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है द सिस्टम ऑफ सीसीटीवी कैमरा.
Let us come to the box which it is written. Facilitating coordination in action. कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज, क्योंकि जहां जहां आपका डिविएशन आपको वहां वहां पता लग रहा है. ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. दे वुड नो कहाँ पर किसके साथ कहाँ कोऑर्डिनेट करना है, वेयर द लैक इज. एंड मतलब कि प्रैक्टिकली आई हैव सीन, अभी फॉर एग्जांपल आई नो दैट दिवाली आती है, तो इन द कॉर्पोरेट दे हैव दिस स्कीम कि दे मतलब कि गिव द गिफ्टिंग, दे गिफ्ट द आइटम्स टू ईच अदर. एंड दिस ये जो तैयारी होती है ना, दिस स्टार्ट्स अर्ली इन अगस्त, बिकॉज माई हस्बैंड इज द इन चार्ज फॉर दैट. तो आई कम टू नो दैट मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट से क्या लेकर आना है, कहाँ से पैसा लेकर आना है, ये है वो है, मतलब दे आर मतलब उनको पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. एंड इफ इट इज अ चेक, अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो यू वुड दिस वुड बी एबल टू इजीली एबल टू डू. माय डॉटर शी इज इन एमएनसी एंड उनके कंट्री मतलब उनका जो कंपनी है, दे आर मोर डीलिंग विथ थिंग्स विच आर आउटसाइड. और आपको पता है इन मार्च वो चिल्लाती रहती है कि उसका नाम क्या है, हमारी शिपमेंट जानी है, हमारी शिपमेंट जानी है. किसकी शिपमेंट जानी है? उसका नाम है न्यू ईयर की. तो मैंने इससे कि मार्च में, तो वो कहती है यस ममा नाउ विल स्टार्ट कंट्रोलिंग. तब जाके स्पेसिफिकेशंस चेक होती हैं, उसके बाद आपके बीच बीच में देर आर सो मेनी डिविजन एंड अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम अगस्त. अगस्त में जाते हैं तब जाकर वो 2-3 महीने लगता है शिपमेंट जाने में. सो इफ you want to coordinate, it's a one. Now there are some limitations also. डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव, उस दिन आपको मैंने बताया था कंट्रोल हम क्वांटिटेटिव भी करते हैं एंड क्वालिटेटिव भी करते हैं. अब क्वालिटी का तो हम बोल सकते हैं कि ओके वी डोंट वांट द फॉक्स लेदर, वी वांट द मतलब कि वेगान लेदर. लेकिन क्वांटिटी को कैसे बताएं? द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड इज वेरी डिफिकल्ट. क्यों? एक इंसान, जैसे मैं आपको पेपर देती हूँ तो एक बच्चा 2 घंटे में करता है, एक बच्चा 1.5 घंटे में करता है, एक बच्चा 3 घंटा करता है. नाउ वी कैन नॉट, ये जो टाइम वाला है, क्वांटिटी मतलब हो जाता है टाइम 1 2 3 जिसमें न्यूमेरिकल्स आ गए, उनको मैं कैसे करूं? एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन बिहेवियर मुश्किल होता है. लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. एज आई सेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी कब चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कब हो गए, नोबडी नोस. कंपटीशन कब आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी निकाली, कंपटीशन आपका बढ़ गया. किसी चीज पर उन्होंने जो है सब्सिडीज दी, कंपटीशन आपका बढ़ गया. मेनी टाइम्स द एम्प्लॉयज फील दैट इट्स अ रिस्ट्रिक्शन. उनको अगर कॉन्टिन्यूसली अगर वॉच पे रखा जाता तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है. एंड एज आई सेड, अ कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन नॉट अफोर्ड इट. से छोटे छोटे ढाबों में आप कहाँ, बड़े 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 होटल्स के अंदर तो आप बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हो. उस दिन आई हैड गिवन यू वन इन दिस माय ओन एक्सपीरियंस आल्सो. फॉर अ स्मॉल एरिया इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. नाउ ये वाला जो, अगर इफ यू हैव द फिजिकल बुक, प्लीज इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, very very important. Planning and controlling are inseparable twins of management. A system of control presupposes the existence of certain, कंट्रोल तभी करोगे ना जब कुछ प्लान किया होगा, कोई स्टैंडर्ड सेट हुआ होगा. These standards of performance which serve as the basis of control are provided by planning. Once a plan becomes operational, controlling is necessary to monitor.
और प्लान तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो देन वो जो आपने प्लान किया है वो बेकार है। क्योंकि जब आप टाइम टू टाइम साथ में फॉलो अप करोगे तो यू विल फाइंड द डिविएशंस। दस, planning without controlling is meaningless. Similarly, controlling is blind without planning. ये पेपर में बिल्कुल सेम वर्ड आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ। If the standards are not set in advance, managers have nothing to control. If there is no plan, there is nothing to control. Planning is clearly a prerequisite for controlling. It's utterly foolish to think controlling could be accomplished. भाई जब प्लान ही नहीं किया है, कई बार क्या होता है, मतलब ये तो मैं कह रही हूँ ह्यूमन बिहेवियर के मिस में, आई एम नॉट टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? आई हैड अ वेरी फेमस स्टूडेंट, फेमस इन द सेंस कि शी वाज वेरी शी इज नाउ अ डॉक्टर, बट आई यूज्ड टू टेल हर मेनी टाइम्स, आई यूज्ड टू टेल, मतलब कि बेटा पढ़ लो, मैम हो जाएगा ना, क्यों टेंशन लेते हो आप और मम्मा इतना टेंशन लेते हो, इट्स ओके, बट समथिंग यू प्लान, मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू विल बी बर्डनड एट द एंड। किस चीज को आप कंट्रोल करोगे? बिकॉज certain things are in your hand, certain things are not in your hand. Without planning, there is no predetermined understanding of the desired performance. Planning seeks consistent, integrated, and articulated programs, while controlling seeks to compel events to conform to plan. Planning mental process है और controlling आपका doing process है. It is often said, ये वाला भी पैराग्राफ अच्छे से याद रखना प्लीज, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ये मैंने आपको पीछे लास्ट में करवाया था, लास्ट वाले क्लास में, बट इट इज पार्शियली करेक्ट, दोनों ही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है। दिस इज द एंटायर पैराग्राफ, काइंडली underline it, or if you have the highlighter, highlight it. Plans are prepared for future and they are based on the forecast. So planning involves looking ahead, इसीलिए हम उसको forward कहते हैं. On the contrary, controlling is like postmortem of the past activity to find the deviation. So it is a backward. However, एक बार आपने प्लान किया, वो फेल हो गया या उससे आपको ज्यादा फायदा हुआ, तो आप उसी को तो अपना प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रखोगे ना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को. सो इट इज ऑल्सो, प्लानिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड एंड ऑल्सो बैक. अबे पिछली बार ये काम किया था, पिछली बार ये गलत हो गया था, इस बार नहीं होना चाहिए. इट इज ऑल्सो, and the corrective action initiated by control improves the future. यानी कि both are backward as well as forward. मतलब हम पीछे का भी देखते हैं, भाई हमने क्या प्लान किया था, what was its result, और आगे जब हम प्लान करते हैं तो उसको लेते हैं, तो पीछे भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं. और कंट्रोलिंग में भी हम देखते हैं पिछली बार हमने जो डिविएशन हुआ था उसका हमने क्या लिया था, और नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से वही चीज को ना होने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज वाई पीछे भी देखना है और आगे देखना भी है. They are interrelated. Planning is based on facts, which makes controlling easier. And controlling improves future planning. Now, the steps of controlling. It's a systematic process और हम लोगों को इसको वैसे ही लेना है. The very first is setting performance standard. आपके पेपर में 1 मार्क में आता है, standards are set quantitative and qualitative. So it is both. ये वाला जो ट्रेडिशनल टेक्निक वाला ना, ये सारा कुछ आपका ओमिटेड है. दिस विल नॉट बी कमिंग. आपका पेपर में यहीं तक है, 213 तक.
The first step in controlling is setting up performance standards. Means किस क्राइटेरिया पे आप परफॉर्मेंस को चेक करोगे. इट कैन बी क्वांटिटेटिव, ये वाला जो पैराग्राफ है काइंडली अंडरलाइन इट. स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्ट यूनिट, टाइम, जिसमें आपका न्यूमेरिकल्स आता है, उनको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं. समटाइम्स स्टैंडर्ड्स में बी ऑल्सो सेट इन क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी. दैट इज आपका. एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, a manager should try to set standards in precise quantitative term. कैसे? 1 minute. At the time of setting standards, a manager should try to set standards in precise quantitative terms. For instance, reduction of defects from 10 in every. मैं उस दिन आपको बता रही थी कि कुछ आपके जो deviations है वो तो रहेंगी. You cannot exactly, आप ये नहीं बोल सकते भाई 1000 मैंने बोला तो आपको 1000 बना के देना है. So उनको ये पता होना चाहिए कि मशीनों में कभी कभी कोई चीज़ फंस जाती है, कभी कुछ हो जाता है. So they have to precisely tell कि क्या होना चाहिए. However, whenever qualitative standards are set, an effort must be made कि किस तरीके से आप करोगे. That would make measurement easy. For example, improving customers' satisfaction in a fast food chain having self service. तो उसके लिए आप क्या सेट कर सकते हो? Time taken by the customer to wait for a table. That is a quality service. Time taken by him to place the order, time taken to collect the order. The standard should be flexible enough to be modified whenever required. कि environment में changes होती है तो आपको standards में हमेशा modification करना पड़ता according to the realistic figures. Then first आपने जो है set कर दिया है 1000 यूनिट 1 डे, ये हमने सेट कर दिया है. अब हम देखेंगे कि कितना हुआ है. परफॉर्मेंस शुड बी measured in objective and reliable manner. Means it should be trusted. It should not be चलता है वाला. Trial and error method should not be there. There should be proper techniques. अब ये जो techniques लिखे हैं ना बेटा, this comes in the 1 marker question. Personal observation, sample checking, performance reports. It should be measured in the same units in which standards are set. भाई 1000 units से कितने हुए, यानी कि units है, units में ही होना चाहिए. ये नहीं कि मैम 1000 units से 1 घंटे में, आधे घंटे में हुआ. घंटों में नहीं, 1 घंटे का ही देखना, आपने units को देखना. It's generally believed measurement should be done after the task is completed. However, measurement of work should be done during the performance. Like in case of assembling the task, उसी वक्त आप चेक कर सकते हो. In a manufacturing plant, levels of gas particles could be continuously monitored. Measurement of performance of an employee, मतलब आपका appraisal जो है, that's आपका measurement. तो वो हमारा एक set होता है standard. किसी किसी कंपनी में होता आउट ऑफ 5, किसी में होता आउट ऑफ 10. और उसका जो सुपीरियर होता है वो कैलकुलेट करता है कि उस इंसान से हमें कितना फायदा हुआ, कंपनी को कितना फायदा हुआ.
Measurement of a company's performance may include calculation of gross profit, net profit, return on investment. मतलब periodically आप इन चीज़ों को देखोगे तो you will be able to understand. Progress in work, जैसे मार्केटिंग, उसको हम देख सकते हैं कितना बिका है सामान. यानी कि हर एक चीज़ के लिए आप जो हो कंट्रोलिंग सिस्टम रख सकते हो, तो आप मेजरमेंट को देख सकते हो टाइम टू टाइम. In small organization, each piece produced may be checked. However, it might not be possible in large. तो वहाँ आप सैम्पल चेकिंग यानी कि रैंडमली चेक कर सकते हो. अब आपने चेक कर लिया, आपने सेट किया था 1000, आपने अब चेक किया कितना हुआ. नाउ कितना हुआ माइनस कितना हमने सोचा था, कंपैरिजन. It involves a comparison of actual performance with the standard. यानी कि अगर कोई डिविएशन है वो यहाँ पता लगेगा. For instance, performance of a worker in terms of unit produced in a week can be easily measured against standard output. एक वीक में हमने 10,000 देखा था और एक वीक में 9,000 हुए हैं. We have now compared. अब हम देखेंगे what is the problem, what is the deviation. The deviation can be machine, the deviation can be anything. तो अब हम देखेंगे कितना हुआ. पहले हम एनालाइज करेंगे how much. Some deviations in performance can be expected in all activities. अभी आपको मैंने बताया, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सोचो आपके स्कूल में, मैं बार बार वही एग्जाम्पल लेती हूँ, 3 घंटे का पेपर, तो हो सकता है कि अच्छे से अच्छा बच्चा भी कभी कभी 10 मिनट आगे पीछे लेता है. बट deviations in key area of business needed to be attended more urgently as compared to insignificant area. अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये पेपर में अलग से आता है. CPC and MBE. Critical point control. What is that? Please mark it as important. It is neither economic nor easy to keep a check on each and every activity. आप कितने एक्टिविटीज पे करोगे? रॉ मटेरियल के आने से फिनिश्ड गुड तक आपके पास हजारों एक्टिविटीज है. सो कंट्रोल शुड बी देयरफॉर ऑन द की रिजल्ट एरिया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्रिटिकली जब आपका सामान बन के आ रहा है, मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई किस टाइम पर आपको इस पे कंट्रोल ज्यादा रखना है. If anything goes at the control point, the entire organization suffers. For example, in an manufacturing, 5% increase in labor cost will be troublesome than 15% increase in postal charge. क्योंकि उसका immediate effect आपके cost पर आएगा. Management by exception is referred as control by exception. यानी कि control based on the belief, ये उस दिन मैंने लिखा भी था, controlling everything results in control nothing. Thus only significant deviations. आपको ये जो की रिजल्ट एरिया देखा उसमें आपको डिविएशन देखना है. अगर परमिशेबल लिमिट में है तो डिविएशन को नजरअंदाज कर सकते हो, बट इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड देन यू हैव टू. फॉर एग्जाम्पल सेम यही क्वेश्चन है, देखो, इफ द प्लान लेज डाउन 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, इट्स एन एक्सेप्टेबल. बट 2 से ज्यादा होगा तो दैट वुड बी अ मेजर डिविएशन. तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो. दे आर इंटर रिलेटेड. मतलब CPC इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि किस जगह पे डिविएशन हो रहा है. एंड मैनेजमेंट में एक्सेप्शन में अगर डिविएशंस आर आपका हल्का फुल्का है तो इट इज ओके एंड यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिविएशन अब आपको करना है, you need to analyze. Deviations may have multiple causes for their origin. मतलब deviation क्यों होगा? It can be unrealistic standards, defective process,
रिसोर्स नहीं है, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रेंट ठीक नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है. इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज फेलिंग विच द करेक्टिव मेजर मे नॉट बी पॉसिबल. इसका एक बॉक्स बना हुआ है बेटा, और ये पेपर में मतलब कि ऐसे आता है. क्वांटिटी में मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स यूज हम लोग ये यूज करते हैं. दिस इज द वन, मतलब दीज आर द वन. ठीक है. और आपके डिविएशन में दिस इज द वन. डिफेक्टिव मटेरियल है तो आपको क्वालिटी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. मशीनरी है तो आप उसको ठीक करिए या रिप्लेस करिए. ऑब्सोलेट हो गया है, जैसे मैंने बताया कि वो मशीनरी आपके सामान को नहीं ले रही है, तो चेंज करिए. डिफेक्टिव प्रोसेस है, मूवमेंट पे प्रॉब्लम है, उसको ठीक करिए. फिजिकल कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइट नहीं है, लेबर का रिसोर्स है, उसको ठीक करिए. Now you have found the deviation, their causes have also been taken. Now the final step is taking corrective action. No corrective action is required when the deviations are within acceptable limits. तो मैंने अभी आपको बताया कि कई बार क्या होता है, समथिंग, अब थोड़ा बहुत तो आपको उतार चढ़ाव लेकर चलोगे ना. अब आपने लेबर कॉस्ट, एक साल पहले रिक्शे का चार्ज कुछ और था, आज कुछ और है. अभी फॉर एग्जाम्पल आई वॉज जस्ट परसों तरसों आई वॉज जस्ट रीडिंग द न्यूज़ कि नाउ सर्टन ट्रांसपोर्ट में मतलब कि दे हैव इंक्रीज. अब थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा तो कॉस्ट में हम एडजस्ट करते हैं, इतना मार्जिन हर कंपनी रखकर चलता है. बट इफ द मार्जिन इज मोर तो देन डेफिनेटली हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है. तो इफ इट इज विद इन, पहले हमें देखना पड़ेगा वेदर इट इज गोइंग टू बी द की रिजल्ट और वेदर इट इज, देन वी हैव टू सी. अगर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो वी शुड लीव. और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में, बिकॉज एज अ मैनेजर you are going to analyze, you are going to make the powerpoint, you are going to make the presentation, you are going to make the excel sheet. आपको पूरी स्टडी करनी है, आपको पूरा डेटा बनाना है. तो what will happen is when you make the data, आपको समझ आएगा कि okay, I have been wrong here. तो immediately you have to take it to the superior कि this may result in loss, and then immediately take the action. However, when the deviations go beyond the acceptable range, that is in the important area, it demands immediate managerial attention so that the deviations do not occur again and standards are accomplished. Corrective actions क्या हो सकते हैं, मैं आपको already बता चुकी हूँ. It may be training of employees अगर production target नहीं हो रहा है. If an important project is running beyond schedule, तो आपको हो सकता है कि आपको एडिशनल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है, सामान की ज़रूरत पड़ रही है, ओवर टाइम की ज़रूरत पड़ रही है. In case the deviation cannot be corrected through managerial action, then the standards may have to be revised. There might be, ऐसा नहीं है कि in the information in the box in the next page gives an account of how SACO Defense was able to control a crisis situation. Please read all the sources which are given on in your book, because that would help you out. At SACO Defense, lack of quality had created a crisis. When the government shut it down because it wasn't meeting quality standards, SACO brought TQM program that had restored quality, increased production and decreased cost. Based in SACO, Maine, the 178-old defense company was unable to adhere to the US Navy quality standard. Though their weapons worked well, the government questioned the company's quality practices and policy. For example, if an employee discovered a defective bolt near the completion, the operator would replace the bolt, not document the problem.
The presence of one defective bolt might mean other from the same supplier or batch were also bad. Without follow up, the underlying material problem would not be identified and solved. Normally यही होता है ना कि आपने किसी सामान में देखा कि कोई खराबी है तो आपने उस वक्त में उस चीज़ को चेंज कर दिया. जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, उनको बोला कि भाई यहाँ पर जो है यू आर हैविंग दी मतलब कि ये जो है मतलब यहाँ पर जो है देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सीवेज. तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस जगह को तो ठीक कर देते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते कि पाइप कहाँ से आ रही है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है. तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया को तो उन्होंने ठीक कर दिया लेकिन जो एंटायर प्रोसेस था वहां पे गलती हो गई. To solve these problems, Sacco Defense went through an organizational transformation. First, empowering the employees by giving them the responsibility and accountability. यानी कि भाई आपको जो है कहीं पर भी परेशानी आ रही है तो आप जवाबदारी हो. Forming work cells, the small businesses within the company that manage the production with limited supervision. Reducing the workforce, eliminating the layers of management. ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. In addition, ongoing improvement projects at the company range from reducing cycle time, product cost. The productivity has increased, turnover is down, the company plans to expand its international business. कम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया है. And these are very common problems, not only in defense but in every area. So that is why we need to see about the CPC, management by exception, जिससे कि आपको जो है जहां प्रॉब्लम है वहीं पर उसको ठीक करो. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज थोड़े बहुत डेविएशंस हैं वहीं पे हो गया, बट इफ इट हैज रिजल्टेड इन द ओवरऑल लॉस, तो कंपनी का तो लॉस होगा, आपका भी होगा. So that is why we need to identify the critical problem, timely action, so that it decreases the what you call as employees turnover also, loss also. So this is all in the chapter that is controlling. ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स, these were all पहले था, now it is not there. So no need to do all these. You need to only do on only the things which I have done. These all things are deleted. आपका जो मेन है वो है what is controlling. Then ये वाला जो आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है features of controlling. Then importance of controlling, limitations of controlling, and then आपका relation between planning and controlling. ये बहुत ज़्यादा important है. as बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा आपका relationship बहुत important है. Then steps में you may not be given, you may not be asked to prepare all the steps. एक या दो स्टेप दे दिया और आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट 3 स्टेप्स क्या है, that they may be tell. So this is all in the chapter controlling.